Hello students, I'm Sunanda Maini and I'm going to take up question answers of the chapter On the Face of It. First question, who is Mr. Lamb and how does Derry get into his garden? Mr. Lamb कौन है और डेरी उनके गार्डन में कैसे आता है? मिस्टर लैम एक लोनली मैन है जो अपने घर में अकेले रहते हैं और अपने गार्डन में एप्पल्स उगाते हैं, पियर्स उगाते हैं, जिनको लेने के लिए बच्चे वहाँ आते हैं और इसी बहाने वो उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। और डेरी उनके गार्डन में आउट ऑफ क्यूरोसिटी चला जाता है। क्यूरोसिटी मीन्स कुछ जानने के लिए, कुछ देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। Mr. Lamb is a lonely elderly person who stays by himself in his house. He has a big garden where he grows apples and pears and rears bees, and children come into his garden and take apples, and that is how Mr. Lamb makes friends with those children. Derry got into his garden stealthily out of curiosity. Stealthily means chori chippe. Out of curiosity to know who lives there and what is going on in the garden. What complex did Derek suffer from? Derek को किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स था, किस चीज़ से वो अपने आप को दूसरों से कम समझता था? उसे कॉम्प्लेक्स था कि उसका चेहरा की एक साइड जली हुई है और वो बहुत ही भद्दा दिखता है, इसलिए कोई उसकी तरफ देखता नहीं, अगर देखता है तो डर जाता है और कोई भी इसीलिए उससे प्यार नहीं करता। So Derek suffered from the complex of a burnt face, and he felt whoever looked at him would get scared and nobody could love him. How would you explain Mr. Lamb's expression, I am old, you are young, you've got a burned face, I've got a tin leg, not important. Mr. Lamb की इस स्टेटमेंट को कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरे पास एक टिन की लेग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? मिस्टर लैम्ब जब डेरिक से मिलते हैं तो डेरी उनसे बोलता है कि क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है इसीलिए कोई भी उसकी तरफ देखना नहीं चाहता, जो देखता है वो डर जाता है। लेकिन उसकी इस नेगेटिव एटीट्यूड को एक पॉजिटिविटी की तरफ लाने के लिए मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारा चेहरा जला तो मेरा भी पैर कटा हुआ है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डेरिक को समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान में कोई ना कोई कमी है और उन कमियों को लेकर अगर हम रोते रहेंगे तो हमारे पास खुश होने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा इस ज़िंदगी में। इसलिए हमें अपनी पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए और उस पॉजिटिविटी को लेकर इस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। सो द importance of this expression by Mr. Lamb is that he wants Derek to understand that everybody has got one or the other flaw. If we look at our flaws, then we have several reasons to keep moaning about them, and that will bring negativity into us. We should overcome this negativity by positive thoughts and enjoy life. Why is one green growing plant called a weed and another a flower? Green growing plant, हरे पौधों में से एक को हम weed कहते हैं और दूसरे को हम flower बोलते हैं। ऐसा क्यों? What does Mr. Lamb mean by this statement? Mr. Lamb का इस statement से क्या मतलब था? मिस्टर लैम्ब ने ऐसा कहा क्योंकि उनका ये मतलब था कि हर चीज़ को देखने का नज़रिया है।
सेम ग्रीन प्लांट को कोई वीड कह देता है और कोई फूल कह देता है, यानी कि कोई उससे ये सोचता है कि इस प्लांट की हमें ज़रूरत नहीं और उसको निकाल के फेंक देता है, और दूसरे ही उसी तरह के ग्रीन प्लांट को दूसरा इंसान एक फ्लावर मानता है जिससे हमें खुशी मिलती है. So, Mr. Lamb means by this statement that when we look at the same thing, we have, all of us have a different viewpoint. Some look at a plant as a weed and throw it out, and others look at the same green plant and consider it as a flower which spreads beauty and gives us joy. So it is only a matter of looking at things the way we want to. Same thing can give joy to one person and sorrow to the other. So we should always, he wanted Derek to look at things in a positive way and not consider anything evil or negative in this world. What does Mr. Lamb mean by referring to the beauty and the beast? मिस्टर लैम का क्या मानना था जब वो ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में बोलते हैं? सेम चीज़ मिस्टर लैम का ये मानना था कि हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो है वो सबका डिफरेंट है, और उनकी ये डायरेक्ट से सलाह थी कि वो अपने लाइफ के एटीट्यूड को पॉजिटिव रख के लाइफ को एंजॉय करें, अपने आप को उस वर्ल्ड से काट के दूर ना ले जाएं, क्योंकि इस वर्ल्ड में एंजॉय करने के लिए, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए या पॉजिटिव काम करने के लिए बहुत कुछ है. So when Mr. Lamb refers to the story of the Beauty and the Beast, he meant to explain to Derek that life is the way we look at it. Our attitude matters. Princess Beauty kissed the monstrous beast because she was in love with it. And also, our appearances don't matter. हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अंदर से क्या हैं, that makes a difference. And the most important message that Mr. Lamb wants to convey by this story is that outer appearances do not matter in life. It is our inner heart or our inner feelings that makes us attractive towards others. So probably that was the reason the Princess Beauty fell in love with the monstrous beast, because she was attracted by his good behavior. And when she kissed him, he turned into a handsome prince. So how does Mr. Lamb comfort Derek when he says that no one will love him because of his burnt face? So Mr. Lamb Derek को कैसे समझाते हैं जब वो ये कहता है कि उसे कोई भी प्यार नहीं करेगा क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है? तो मिस्टर लैम उसे ये समझाते हैं कि अगर उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता और उसका चेहरा जला हुआ है, ये उसका कारण है, तो उसे अपना एटीट्यूड बदल लेना चाहिए. वो तो दूसरों से प्यार कर सकता है, उसके पास 2 आँखें हैं, 2 कान हैं और मुंह है और टांगे हैं और 2 हाथ हैं, जो वो यूज़ कर सकता है इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए. और वो उसे इन अ वे एनकरेज करते हैं कि अगर उसमें कोई छोटा सा कमी है, अगर उसमें कोई फिज़िकल नुक्स है, तो उस चीज़ का एक इशू नहीं बना लेना चाहिए उसे लाइफ में, उसको लेके उसे रोना नहीं चाहिए और उससे ये नहीं फील होना चाहिए कि वो इस नुक्स की वजह से बाकी दुनिया से कट के अपने आप में ही सिमट के रह जाए और अपनी ही दुनिया में अपने कॉम्प्लेक्सेस के साथ ज़िंदा रहे. So Mr. Lamb comforts Derek when he says that no one will love him because of his burnt face by saying that if no one would love him, he should not bother about it. He should start loving others because he had everything what others had except for a half burnt face.
Derry had 2 hands, 2 eyes, 2 ears, 2 legs, and he could do whatever anybody else could do. So he should live life like a normal being and love whomever he feels deserves his love or whomever he gets attracted towards. Why does Mr. Lamb feel that Derek is not lost altogether? मिस्टर लैम को ऐसा कब महसूस हुआ या क्यों महसूस हुआ कि डेरेक का आफ्टर ऑल सब कुछ नहीं ख़त्म हुआ, यानी कि उसके अंदर अभी भी फीलिंग्स हैं। मिस्टर लैम को ऐसा तब महसूस हुआ जब डेरेक उन्हें बताता है कि वे किसी को पसंद नहीं करता, किसी से मिलना पसंद नहीं करता, लेकिन उसको बारिश की आवाज़ जो रूफ पे आती है वो अच्छी लगती है। तो जब वो इतनी बात कहता है, मिस्टर लैम समझ जाते हैं कि इसके अंदर अभी भी फीलिंग्स हैं, अभी भी दूसरों के लिए ये महसूस कर सकता है या अच्छी चीज़ों को अनुभव कर सकता है और उनको इंजॉय करता है। So when Derek said that he loved to listen to the sound of raindrops on the roof, Mr. Lamb realized that all is not lost. He still had his feelings alive and he still had interest in the nature. Why does Mr. Lamb narrate the story of a man who locked himself in a room because he was afraid? Mr. Lamb ने वो स्टोरी क्यों सुनाई जब एक इंसान ने डर के मारे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था? मिस्टर लैम ने डेरिक को वो स्टोरी इसलिए सुनाई क्योंकि वो उसे ये समझाना चाहते थे कि अगर उस इंसान ने डर के मारे अपने आप को बंद कर लिया था कमरे में, एक फ़ोटो उसके ऊपर गिर जाने से उसकी मौत हो गई। इसी तरह से अगर डेरी अपने आप को इस दुनिया से काट लेगा और अपने ही घर में अपने आप को बंद करके रखेगा, उससे उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वे अपने ही नफ़रत की दुनिया में जल के रह जाएगा। उसे इनफैक्ट बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। जो उसका फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट है, अगर फ़िज़िकली उसमें कोई नुक्स है तो वो एक मामूली चीज़ है, बाकी सब अंग उसके पूरे हैं और वो दुनिया में एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकता है। Mr. Lamb narrated the story of a man who locked himself in a room because he was afraid, because he wanted Derry to realize that cutting off oneself from the rest of the world does not serve any purpose. The man did not go out because he was scared that he would die, and still he died when a photo fell on him. So similarly, if Derry thought that people hated him because of his burnt face, and that was the reason he was cutting off himself from the rest of the world, then he was wrong. Those who had to hate him would keep hating him, but there were others who would love him, and he had everything else except that burnt face, and with all other organs intact, he could handle the world like a normal person could do. What kind of a world would that be? Which world is Mr. Lamb referring to? किस दुनिया की बात कर रहे हैं Mr. Lamb? Why does he disapprove of it? Mr. Lamb उस दुनिया की बात कर रहे हैं जहां उस औरत ने स्टेटमेंट दी थी जब डेरी हॉस्पिटल से आया था कि ऐसे बच्चों को हॉस्पिटल में अपने जैसों के साथ ही रहना चाहिए। मिस्टर लैम ऐसी दुनिया के लिए अप्रूव नहीं करते या मानते नहीं इस बात को, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर एक इंसान में कोई कमी है, फिज़िकल कमी है, फिज़िकल हैंडीकैप है, और अगर हम उसे नॉर्मल ज़िंदगी ना जीने दें और वैसे ही लोगों के बीच में उसे रखेंगे तो उसकी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। वे उन तकलीफ़ों को ज़्यादा महसूस करेगा और अपने ही अंदर घुलता चला जाएगा, जबकि वो इस तकलीफ़ को, अगर वो नॉर्मल दुनिया में आके रहेगा, इस तकलीफ़ को बहुत जल्दी ओवरकम करके एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है।
So the world which Mr. Lamb is referring to is a world of totally physically handicapped people, where similarly handicapped people would be living together. He does not approve of it because he feels that if a physically handicapped child would be made to live with similarly handicapped people, then it would remind him of his impairment or handicap more often, and he could probably burn himself up in those complexes, and he would never be able to live a normal life. On the other hand, if he would come out in the world, he could very easily overcome this handicap and contribute positively to the world. What is the underlying idea behind Mr. Lamb's observation? Everything is the same, but everything is different itself. Mr. Lamb ने जब ये स्टेटमेंट दी कि हर चीज़ एक जैसी है फिर भी हर चीज़ डिफरेंट है, उसका इसके पीछे क्या मतलब था? मिस्टर लैम का ये मानना था कि हर चीज़ एक जैसी दिखती है। दैट मीन्स हम फिज़िकली एक जैसे दिखते हैं, हमारे दो कान हैं, दो आँखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, और इसके अलावा हमारे अंदर कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट भी है जो छिपा हुआ है, जो बाहर निकलता है जब हमें दुनिया में मौका मिलता है। और इसके अलावा मिस्टर लैम का ये मानना था कि हम सब बेसिकली एक ही हैं, हमें एक ही भगवान ने बनाया है, इसलिए हमें एक दूसरे से ये जो डिफरेंसेस हमने क्रिएट कर दिए हैं, कलर को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, इन चीज़ों से ऊपर उठ के हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और इस ज़िंदगी को पॉजिटिवली जीना चाहिए। और हमारे अंदर जो भी छोटे छोटे भगवान ने किसी ना किसी को यूनिकनेस दी है, जो हमारी एक अलग हमारी पहचान दी है, उस पहचान को उभरने का मौका तभी मिलेगा अगर हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। सो द अंडरलाइंग idea behind this statement that everything is the same but everything is different itself was that Mr. Lamb believed in the oneness of humanity. He felt that all human beings are the same. We have similar organs and we have been created by one God. Still, we have some unique things about ourselves which can only be brought out if we get opportunities in the world, and this talent can contribute positively to life. So we should all care for each other, share our things with others, and contribute positively to the world. What is Mr. Lamb's fear about Derek's going back home? लैम को क्या डर था जब डेरेक घर चला जाएगा? What light does it throw on Mr. Lamb's character? इससे मिस्टर लैम के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? मिस्टर लैम को ये डर था कि डेरेक अगर एक बारी अपने घर चला जाएगा तो वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर लैम जो हैं वो बहुत ही लोनली पर्सन थे, अंदर से अकेलापन महसूस करते थे, और वो हमेशा ये चाहते थे कि कोई ना कोई उनके पास रहे। उन्हें एक किसी कंपेनियन की, किसी फ्रेंड की बहुत ज़रूरत थी। So Mr. Lamb's fear about Derek's going back home was that he would never come back. And it tells us about his character that he was a lonely person and he always looked for companionship in small children or whoever visited his garden. What makes Derek observe that if I don't go back there, I'll never go anywhere in the world again? Derek ने ऐसा क्यों कहा कि अगर मैं वहाँ वापस नहीं गया तो मैं शायद दोबारा कभी भी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वो मिस्टर लैम से मिला था तो उसे बात करके
उसको बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ था, वो बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ था। ऐसी बातें उसके साथ पहले कभी किसी ने नहीं करी थी। वे इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को समझने लगा था और उसे ऐसा लगा कि उसकी बातों से उसकी लाइफ चेंज हो रही है और शायद अच्छे के लिए चेंज हो रही है। और वे ये चाहता था कि वापस जाके वो मिस्टर लैम को हेल्प करे, क्योंकि उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत थी। दैट मीन्स उसके अंदर पॉजिटिविटी आई थी और वो उस पॉजिटिविटी को ज़िंदा रखना चाहता था। सो डेरिक made this statement that if I don't go back there, I'll never go anywhere in the world again, because he had started feeling comfortable in the company of Mr. Lamb, and he felt that Mr. Lamb had drawn positivity out of him, and he needed to go there and help Mr. Lamb who needed him. And he also felt that since Mr. Lamb's garden was the place where he had started feeling positive, he would never be able to face anybody with that vigor and positivity if he did not go back to Mr. Lamb. Next question. The actual pain or inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by a person with the disabilities discuss. इसका मतलब है कि असलियत में जो तकलीफ़ है, जो इंसान के पास अगर कोई इंसान किसी फिज़िकल हैंडीकैप से सफ़र कर रहा है, तो उसको उस इम्पेयरमेंट मीन्स उस नुक्स से उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी कि उसे सेंस ऑफ एलियनेशन मीन्स अकेलापन, अलग रह जाना, कट के रह जाना दुनिया से, उससे होती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सच है कि अगर किसी इंसान को कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है तो उसको उस तकलीफ़ से इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी उसको लोगों के एटीट्यूड से होगी अगर वो इस दुनिया में अकेला रह जाएगा। सो दैट मीन्स हमें, अगर किसी इंसान को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो हमें उसको डेरोगेटरी यानी कि क्रिटिसाइज़ करने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमें उसकी तकलीफ़ पे हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ सिंपथाइज़ करना चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो उस फिज़िकल इम्पेयरमेंट को ओवरकम कर पाए और इस दुनिया में एक नॉर्मल इंसान की तरह जी पाए। और डेरी जो है वो इसका लाइव एग्जाम्पल है कि जब उसका फेस जला हुआ था, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह आते हैं और आपको उन लॉन्ग क्वेश्चंस में जनरल जो पूछा गया है वो लिखने के बाद स्टोरी का रेफरेंस देना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और इसके बाद आप लिखेंगे कि डेरी जो है एक ऐसी ही एग्जाम्पल है जो दुनिया से कट के रह गया था क्योंकि उसका बर्न्ट फेस था, बट जब वो मिस्टर लैम्ब से मिलता है तो उसे कंफर्टेबल फील होता है और उसे ये महसूस होता है कि वह पॉजिटिवली अगर ज़िंदगी को देखेगा तो इस तकलीफ़ के, इस बर्न्ट फेस के बावजूद भी वो बहुत कुछ कर सकता है। उसे अपने आप को अपने कमरे में या अपने घर में बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ हाउ उसकी जो फिज़िकल प्रॉब्लम थी उसको वो ओवरकम करता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना शुरू करता है। So this is a reality that the actual pain or inconvenience caused by any physical impairment is lesser than the sense of alienation felt by the person, because when a person with any physical handicap is looked down upon by people and he is denied the opportunities to live like a normal human being, he gets torn up by his own complexes. He develops a negativity which corrodes him from inside, and that is the reason that he feels that he is actually not a
contributor to the society, but he could devastate the society. So all we need to do is sympathize or empathize with such a person, give him the opportunities to overcome his physical handicap, and give him the opportunities to live like a normal human being. He can contribute positively to the society as Derry could do when he met Mr. Lamb. After meeting Mr. Lamb, Derry realized that his burnt face was not worth shutting himself up from the rest of the world. He had all other organs and he could live a normal life like any other person and contribute to the society. And that's all about the question answers on this chapter, and I'll be back in my next video very soon. Thank you.